everyone. Good afternoon and Jai Hind once again, my dear students. Welcome back in YouTube channel Biology Classes with Chandrakant sir. Students, I am here again in front of you to deal with another chapter of class 11, that is the body fluid and circulation. This is the 18th chapter of your textbook. NCERT का ये 18वां chapter है. Clear? This is a very important chapter of the human physiology because variety of questions are often asked in the NEET examination as well as the other entrance examinations. Clear? So examination point of view से ये chapter बहुत ही important है human physiology का. So all of you are requested to watch this video very properly and nicely. So chapter is somewhat lengthy, so but I have decided to make a small video so that you can understand the contents very nicely. Clear student? बीच में मैं यहाँ पे कुछ important questions भी आप लोगों को दूंगा लगाने के लिए ताकि आपकी practice बनी रहे. Clear student? So let us begin this chapter, body fluids and circulation. In this chapter, student, what we have to study? Basically, you will learn about the body fluids like blood and the lymph, as well as the blood circulatory system. You will learn about the structure of the heart. You will learn about the structure of artery and veins. Clear? And how the blood is circulated throughout the body. Clear? Mechanism of circulation of the blood, that is the double circulation you will learn in this chapter. Clear? You will learn variety of the things. You will learn about the ECG क्या होता है, various disorder related to the circulatory system. Clear? And how the mechanism of circulation is regulated. So all these things are given in this chapter which you will learn. Clear? So let us begin. Student, you know the body of the organism is made up of cells, whether it is a simple organism or the complex organism. The body is made up of cells. जब हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो अमीबा हो गया, सेलेट्रेट्स हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, ये सिंपल है. जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती जाती है. ठीक है, तो मैमल्स दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स. ठीक है ना, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड ईच एंड एवरी सेल्स दे नीड व्हाट? न्यूट्रिएंट. दे नीड ऑक्सीजन, है ना, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. क्लियर स्टूडेंट? ये चीज़ आपको सबको पता है कि न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है. ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म फंक्शन. And how do they get energy? When they get the nutrient energy giving food, and when these energy giving foods are oxidized with the help of oxygen, then energy is produced. Clear? At the same time, variety of chemical reactions takes place inside the cells, and result is the formation of some useful as well as the harmful substances also. है ना? तो यूजफुल सब्सटेंस जो बनते हैं सेल्स में वो तो ज़रूरी होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं उनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है. क्लियर? क्लियर माय डियर स्टूडेंट? सो हियर यू विल लर्न दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस बॉडी फ्लूइड्स एंड द सर्कुलेशन. ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी नीड क्या है. व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस सर्कुलेशन? क्लियर? इट इज़ नीडेड फॉर व्हाट? टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. ठीक है ना, इस सिस्टम की ज़रूरत क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत है इसकी हेल्प से, इस सिस्टम की हेल्प से बॉडी की सारी सेल्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है. क्लियर? सम अदर नेसेसरी सब्सटेंसेज विच आर रिक्वायर्ड बाय द सेल्स, दे आर आल्सो सप्लाइड बाय दिस सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, आपको चोट लगती है पैर में, दवाई खाते हो, मुंह से दवाई वहाँ पे पहुँच जाती है, यानी समथिंग इज देयर विच टेक्स द मेडिसिन टू द रिक्वायर्ड प्लेस इन द बॉडी. क्लियर? उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, है ना. ये तीन बेसिक काम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स करते हैं. क्लियर स्टूडेंट? अब देखो, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आप अमीबा की बात करो
व्हेन यू टॉक अबाउट द अमीबा, तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म नहीं होता है. द इंटायर बॉडी इज इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तो वॉट एवर इट टेक्स डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है, वॉट एवर इट रिमूव्स डायरेक्टली रिमूव टू द इन्वायरमेंट. और अंदर जो सब्सटेंसेज होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोसिस. आप देखोगे साइक्लोसिस होती है, देयर इज अ टर्म साइक्लोसिस. क्लियर? साइक्लोसिस क्या है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म. ठीक है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज साइक्लोसिस. तो ये क्या करती है? किसी भी सब्सटेंस को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करा देती है. क्लियर? ये सभी यूनिसेलुलर्स में होता है. उसके बाद हम बात करते हैं क्या, हम बात करेंगे जब स्पॉन्जेस की, हम बात करेंगे सिलिंड्रेट्स की. तो इनकी बॉडी क्या है? मल्टी सेलुलर है बट सिंपल बॉडी डिजाइन है. आपको याद होगा एनिमल किंगडम में आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पंजेस ऑफ द मेंबर ऑफ पोरिफेरा दे हैव ए स्पेशल वाटर कैनाल सिस्टम. ठीक है, दे हैव द स्पेशल वाटर कैनाल सिस्टम. क्लियर है ना? थ्रू विच द वाटर enters inside the body. Clear? And along with the water the nutrients or the food comes inside the body of the organism and the cells they get the nutrients. ठीक है, and all the excretory product they move out. यानी सिंपल से अगर हम बात करें इस तरह से, तो दिस इज द ल्यूकोसोलिनिया. तो यहाँ से देखो वाटर अंदर आ रहा है थ्रू द ऑस्टिया. आप लोगों ने पढ़ा होगा दीज पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया, है ना? यहाँ से वाटर अंदर आ जा रहा है और ये स्पॉन्जोसील है. दिस कैविटी इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जोसील, है ना? यहाँ से वाटर आया और इस स्पॉन्जोसील में गया, उसके बाद यहाँ से ऑस्कुलम, दिस इज द ऑस्कुलम. यहाँ से ये बाहर निकल गया. ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रिएंट आता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर चला जाता है. तो ये बॉडी डिजाइन बहुत ही सिंपल होती है. यानी हम कह सकते हैं, सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. क्लियर? अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया स्पॉन्जेस के बारे में, उसी तरह सिलिंड्रेट्स की बॉडी में भी होता है. गैस्ट्रोसील कैविटी होती है ना? उसके थ्रू सेल्स को सप्लाई हो जाता है सब्सटेंसेस. क्लियर? अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की. सीधे हमको ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, तो डायरेक्टली कम टू द ह्यूमन बीइंग. So complex organism have body fluids within their body for circulation of various substances. ठीक है, अगर हम लोग अपनी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हमारी बॉडी में तमाम तरह के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, है ना? बहुत तरह के फ्लूइड हमारे बॉडी में बनते हैं. आपको जानना चाहिए, यू शुड नो. ये टर्म बार बार आता है कि बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड. तो बॉडी फ्लूइड में कौन कौन से फ्लूइड्स आते हैं? आप देखो, ब्लड है, लिम्फ है, म्यूकस है. ब्लड, लिम्फ एंड म्यूकस ये बॉडी फ्लूइड्स हैं. ठीक है, एंड दीज हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी. ब्लड भी प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम इन्फेक्शन, लिम्फ भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शन, म्यूकस भी प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से. तो ये हमारे बॉडी फ्लूइड है माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, आप पढ़ोगे क्लास 12th में, आप पढ़ोगे म्यूकस का रोल क्या होता है. हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस लाइनिंग है. पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अभी आपने पढ़ा था पिछला चैप्टर, उसमें म्यूकस लाइनिंग होती है. पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस की लाइनिंग होती है. तो ये किस लिए है? ये प्रोटेक्शन के लिए है ना? अदर फ्लूइड्स में क्या है? सलाइवा है, गैस्ट्रिक जूस है, बाइल है, पैंक्रियाटिक जूस है, सकस इंटेरिकस है. तो ये जो आप देख रहे हो ये भी तो बॉडी फ्लूइड है. बट दीज बॉडी फ्लूइड्स दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. दे हेल्प इन व्हाट? दे हेल्प इन डाइजेशन. दे हेल्प इन डाइजेशन. फिर अदर फ्लूइड्स में क्या आता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे जो ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, CSF होता है, टीयर्स होते हैं, है ना? स्वेट होता है ना? पसीना जो होता है ये भी हमारा बॉडी फ्लूइड है. फिर हमारे आँखों में देखोगे तो वाइट्रियस ह्यूमर होता है और एक्वस ह्यूमर होता है. ये भी प्रोटेक्शन के लिए होता है और विजन के लिए भी होता है. डिफरेंट डिफरेंट काम इनका होता है. ठीक है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं? एक तो सीमेन होता है, मेल के केस में सीमेन होता है ना? विच कंटेन द स्पर्म
along with some secretion of prostate gland and the seminal vesicle, है ना, जो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है ना, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिटी से प्रोटेक्ट करता है स्पर्म्स को, है ना। उसके बाद फिर वेजाइनल फ्लूइड्स हैं, ये फीमेल में होता है। तो स्टूडेंट दीज आर व्हाट, दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ व्हाट, बॉडी फ्लूइड्स which are related to the human being and they perform different function. Clear? I hope that you are getting my point, है ना। So the major portion of this chapter which we have to study is the circulatory system. Clear? Circulatory system को पढ़ना है, we have to know about the circulatory system. So let me introduce the circulatory system. Circulatory system of human being, it has two parts. Clear? एक होता है हमारा blood circulatory system, blood circulatory system, and second one is the lymphatic system. Lymphatic system. Clear? Blood circulatory system में क्या है? You have idea, you have studied in class 10. इसमें आ जाता है blood. Clear? Then blood vessels हैं. ब्लड वेसल्स आर देयर, और उसके बाद आप क्या देखोगे, हार्ट। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम व्हिच वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। इसके बारे में डिटेल पढ़ना है हम लोगों को। अनदर इज द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स लिम्फ, क्लियर, एज वेल एज द लिम्फ वेसल्स। lymph vessels are there, lymph nodes भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। so we will study all these things in this chapter. So it was purely an introductory lecture, my dear students. Clear? I am just going to conclude my introductory lecture here. Next video lecture में, lecture number 2 में we will study about the blood circulatory system. We will discuss about the blood and its composition. आपको आइडिया होगा ब्लड क्या होता है, इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के कितने पार्ट हैं आप देखोगे, प्लाज्मा होता है ना, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, दीज आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली. So you have to wait for my coming video. Very soon you will be getting the next video. Clear? Please watch my video, share my video and subscribe if you have not yet subscribed. Yes, don't forget to press the bell icon. Thank you.